which articles deals with the impeachment of the president. Impeachment of the president ପଚାରିଛି। impeachment କ'ଣ ମାନେ ତା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି impeachment। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା এই ଆଇଡିଆ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ତ impeachment ଆଇଡିଆଟା ଆସିଛି USA ରୁ। impeachment of president ର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ସେଇଟା ଆସିଛି USA ରୁ। ଆଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 75, 74, 63, 61। ତ impeachment of president କଥା ଯଦି କହେ ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ 61 ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି impeachment of president ବିଷୟରେ। ଆଉ କୋଉ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆସିଛି USA କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି who presides over the राज्यसभा। ମାନେ राज्यसभाର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହୁଏ ବା राज्यसभाର ଯୋଉ ସେସନ ହୁଏ ବା କୌଣସି ବି ମାନେ କ'ଣ ମିଟିଂ ବସେ, ତ ତାର ପ୍ରେସାଇଡ୍ସ କିଏ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସ୍ପିକର, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। କୋଉଟା ହେବ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନା ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ act as the chairman of Rajya Sabha or he presides over the Rajya Sabha ହେଲା। ମନେ ରଖିଲେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 61 ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପିକର ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ପିକର। ତ ମନେ ରଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ who presides over joint session of the parliament। ତ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନର ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା ସ୍ପିକର ହେବେ, ଆଉ କିଏ ଡାକନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଜଜେସ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜେସ୍, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ। ତ ଆପଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଲା ଆପଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମାନେ ବେଶୀ କେସରେ ହେଲା, ବେଶୀ କରି ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆସେ ତ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସ୍ପିକର ଜାଣିଲା ଜଏଣ୍ଟ ସେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର, ଏବେ ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଲେଖି ଦେଉଛି। ତ ନୀତି ଆୟୋଗର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଏଟା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ହେଲା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଏଟା ସବୁ ଜାଣିଲେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି which article defines the term state for the purpose of part triple I। ମାନେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଡିଫାଇନ କରେ, ମାନେ ପାର୍ଟ ତ୍ରିପଲ ଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁଣି ସେଟା ଆସୁଛି ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 12, 13, 14, 15 ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାର୍ଟ ତ୍ରିପଲ ଆଇ ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ବା FR ଅଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଯାହାକି ଆସିଛି କୋଉଠାରୁ USA ରୁ ଆସିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟଟା, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ define the term state term को कोई आर्टिकल डिफाइन करे। तो आंसर ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ आर्टिकल 12 एटा मन रखिबे। आर्टिकल 12 जोटा अछि सेटा डिफाइंस करे हमर स्टेट टर्म को। आउ कोन मन रखिबे आर्टिकल 14 भी इंपोर्टेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ आउ एटा हमर कोन फंडामेंटल राइट अंडर रे आसुची। इक्वालिटी बिफोर लॉ को आर्टिकल 14 माने कोन आईन आगरे समस्ते समान हला। तो एटा हला आर्टिकल 15 माने नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन हला, एटा 15। तो एबे स्टेट पचारी थिला आर्टिकल 12। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट अछि व्हिच अमेंडमेंट हला, व्हिच अमेंडमेंट reduced the
voting age from 21 to 18 years माने आगरू voting age केते थिला 21 थिला 21 रो केते 18 को रिड्यूस करावला तो पचारी जे थ्रू व्हिच और बाय व्हिच अमेंडमेंट दिस voting age माने voting age टा कोन हला 21 रो 18 को आसिला 52 अछि 61 अछि 42 अछि 44 अछि तो आंसर कोटा हबो माने voting age रो जो रिड्यूस कथा कहे ताले मन रखिबे 61 अमेंडमेंट रे ए कामटा होइतिला 42 अमेंडमेंट को हमर कहा जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अब काहे की कहा जाय ना एथिरे बहुत गुडे चेंजेस आसीथिला हम कॉन्स्टिट्यूशन रो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये मन रखिबे आर्टिकल 40 सॉरी अमेंडमेंट 42 और ए अमेंडमेंट 42 नंबर जो अमेंडमेंट अछि सेटा केबे होइतिला 1976 रे होइतिला 1976 रे योर मध्ये मन रखि देबे 1976 रे होइतिला हमर 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट कोन ना राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु हटा जाइथिला केबे 1978 रे 44 अमेंडमेंट होइतिला सेथिरे के राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु बाद दिया जाइथिला तो एटा थिला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा नेक्स्ट अछि व्हिच फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर जो अछि फोर्स लेबर तो ताकू को फंडामेंटल राइट अंडर रे सेटा आसुची राइट टू एजुकेशन राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन राइट टू इक्वालिटी तो मन रखिबे एटार आंसर हबो माने फोर्स लेबर जदी कहे ताहले एटा हबो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन और राइट टू एजुकेशन तो जानि छंती एटा कोठी अछि 21 ए रे लिखा होई छला एटा भी आसी थाए 21 ए रे हमरो राइट टू एजुकेशन लिखा होई छी राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 रो 20 अछि सॉरी 22 अछि और 6 फ्रीडम विषय रे कहा जाय छला राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जानिला और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रो 18 मध्ये रे अछि तो एटा सब कोन फंडामेंटल राइट्स अंडर फंडामेंटल राइट्स केतोटी अछि 6 टी टोटल हमरो 6 टी फंडामेंटल राइट्स अछि और आर्टिकल केते रो केते मध्ये रे 12 रु 35 मध्ये रे अछि हमरो फंडामेंटल राइट्स और एटा आसी छी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो हला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अगर माने आपण माने जदी चैनल रे न्यू अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और वीडियो को गोटे लाइक कर देबे तो नेक्स्ट अछि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट establishing what type of state तो एटा प्रथमे देखबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बा डीपीएसपी एटा को आर्टिकल रे लिखा होई छै 36 रु 51 मध्ये रे हमरो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि को पार्ट रे पार्ट आई भी रे हला पार्ट आई भी रे लिखा अछि डीपीएसपी टा पार्ट आई भी रे लिखा अछि तो कोन पचारि छी कोन एम तार माने को प्रकार स्टेट प्रोवाइड करबा पई से चेष्टा करे ऑप्शन अछि रिलीजियस स्टेट वेलफेयर स्टेट कैपिटलिस्ट स्टेट पुलिस स्टेट तो मन रखिबे डीपीएसपी सब वाला वेलफेयर स्टेट बा वेलबीइंग ऑफ द पीपल एटा को सब वाला प्रायोरिटी दे थाए हला तो नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट अछि व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन लेजिस्लेचर बा यूनियन विषय रे कोठी लिखा होई छी को पार्ट रे ऑप्शन अछि पार्ट भी पार्ट आई भी पार्ट भी आई पार्ट भी डबल आई तो मन रखिबे पार्ट आई भी रे त हमर कोन अछि डीपीएसपी अछि पार्ट आई भी रे कोन अछि डीपीएसपी लिखा होई छी तो आंसर कोटा हबो पार्ट भी रे यूनियन विषय रे लिखा होई छी हला यूनियन विषय कोठी लिखा होई छी पार्ट भी और स्टेट जदी कहि जानता ताहले मन रखिबे पार्ट डबल आई
बा पार्ट 6 रे हमर लिखा है कि स्टेट विषय रे यूनियन पार्ट भी और स्टेट जदि कहे पार्ट VI तो VI माने रखिबे और केतोटी पार्ट अछि टोटल हम कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल केतोटी पार्ट अछि ना 22 टी पार्ट अछि हला 22 टी पार्ट अछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट माने एटा सब बेले आसुथे एग्जाम रे माने को आइडिया टा को कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा होईची सेटा मने रखिबे हला तो कॉन्करेंट लिस्ट टा को कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा होईची यूके रु कोन आसीची सिंगल सिटीजनशिप एससी लिखि देबा आ कोन रूल ऑफ लॉ हे गला रूल ऑफ लॉ एटा सब आसीची यूके रु तो सिंगल सिटीजनशिप टा आसी था एग्जाम रे हला सिंगल सिटीजनशिप जोटा कि यूके रु आसी तो ऑस्ट्रेलिया रु आपण मानन को हे जीवो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया हिबा आपण मानन को आंसर कॉन्करेंट लिस्ट कनाडा रु कोन आसीची ना कनाडा रु आसीची आपण मानन को सेपरेशन ऑफ पावर सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन कहा का मध्य रे सेंटर स्टेट मध्य रे हला यूएसए रु तो बहुत किछि आसी प्रीएम्बल आसी छी हमर फंडामेंटल राइट्स आसी छी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आसी छी हमर कोन जुडिशियल सिस्टम आसी छी तो ए सब मन रखिबे को कॉन्स्टिट्यूशन रु को आइडिया टा जनरेट करा है छी बा बोरो करा है छी नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ देखो हम कहितली अपॉइंट जेतेबेले अपॉइंट आसी जाए कि अपॉइंट करंती तो सेते बेले सब बेले होई थाए प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव कहा कहा को सुप्रीम कोर्ट रो जज हे गला सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हे गला हाई कोर्ट रो जजेस हे गला इलेक्शन कमिशन हे गला तो ए समस्त को अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट रिमूव मध्य करंती प्रेसिडेंट हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वीडियो को टिके लाइक कर देबे जो माने भी देखुचंती नेक्स्ट जीवा The power of the Supreme Court to review its own judgment is provided in which article माने निज जजमेंट ऊपर निजे रिव्यू करिवो एटा को आर्टिकल रे लेखा होईची तो एहर आंसर कोटा हबो एहर आंसर हबो आर्टिकल 137 रे एटा लेखा होईची माने सुप्रीम कोर्ट निज जज ऊपर सरी निज कोन निज जजमेंट ऊपर निजे रिव्यू करिवो एटा लिखा होय छै हमर आर्टिकल 137 रे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ माने इक्वालिटी बिफोर लॉ रो जो कांसेप्ट अछि सेटा को कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करा है एटा पचारि छला तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को आर्टिकल ना आर्टिकल 14 रे एटा लेखा है हला इक्वालिटी बिफोर लॉ और एटा फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुची तो फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुची बोली एहा माने यूएसए होई थांता हेले इक्वालिटी बिफोर लॉ यूएसए रु ए आइडिया टा आसीने हला तो आंसर कोटा हबो ना यूके हबो देखो फंडामेंटल राइट बा एफआर हमें लिखि दबा फंडामेंटल राइट टा आसीची यूएसए रु हला फंडामेंटल राइट टा आसीची यूएसए रु हला इक्वालिटी बिफोर लॉ जहा कि फंडामेंटल राइट अंडर रे आसीची सेटा किंतु आसीची यूके रु कनाडा रु तो देखिला हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रांस रु रिपब्लिक वर्ड आसीची फ्रैटर्निटी वर्ड आसीची हला तो मन रखंदु तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट अछि व्हिच आर्टिकल ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एब्रोगेशन माने एटा चेंज हला आगरु गुटे आर्टिकल थिला जहा कि
जम्मू काश्मीर को गोटे स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करूला। तो कोटा आर्टिकल 371, 356, 368, 370 कोटा हम ना आर्टिकल 370 आम यहाँ जानू 370 आर्टिकल थिला जोटा कि जम्मू काश्मीर को स्पेशल प्रोविजन स्पेशल स्टेटस देउथला। और एटा केभे रिमूव होइतिला 2019 रे आम आर्टिकल कोन 370 रिमूव होइतिला। ठीक अछि नेक्स्ट जिबा। नेक्स्ट अछि दी फाइनेंस कमिशन माने फाइनेंस कमिशन को किए अपॉइंट करंती। तो ऑलरेडी टिके लेट हो गलानी तो वीडियो को टिके एथरो जल्दी शेष करबा हला। तो फाइनेंस कमिशन को किए अपॉइंट मु कहि छी अपॉइंट वर्ड आसिला माने प्रेसिडेंट हबारो बहुत चांस। तो फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करंती हमरो प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल सो रिलेटेड आर्टिकल 280 280 आर्टिकल रे हम फाइनेंस कमिशन रो अपॉइंटमेंट विषय रे लिखा होई छी। की करंती ताकू प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब। नेक्स्ट अछि द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने प्रेसिडेंट हेबा पई इंडिया रे प्रेसिडेंट हेबा पई मिनिमम एज किते हला। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेबा पई केते मिनिमम 25 इयर्स 40 35 और 30। तो मन रखंतु प्रेसिडेंट रो जो मिनिमम एज सेटा हेबा कथा 35 हेबार कथा हला। और 25 कहा पई 25 एमपी मानको पई। तो यही मिनिमम एज मध्य मन रखिबे एमपी मानको पई 25 और 30 होची कोन राज्यसभा रो मेंबर मानको पई राज्यसभा। तो लोकसभा रो मेंबर को पई केते 25 राज्यसभा रो 30 इयर्स और प्रेसिडेंट पई 35 हला। तो नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब है। नेक्स्ट अछि हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया बिफोर नीति आयोग माने प्लानिंग कमीशन रो कोन चेयरमैन किए सेटा पचारि छी। तो एटा तो जानि थिबे प्राइम मिनिस्टर और तार ना बे चेंज हे कि कोन हो जाय छी नीति आयोग होई छी। तो प्राइम मिनिस्टर होई चंती प्लानिंग कमीशन बा नीति आयोग रो चेयरमैन हला। और प्लानिंग कमीशन केबे होइतिला 1950 बा 1950 रे होइतिला। फर्स्ट चेयरमैन थिले जवाहरलाल नेहरू हला। नेक्स्ट जवाब। नेक्स्ट अछि आपण मानको व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी हला। अनटचेबिलिटी जदि पचारे तो एटा फंडामेंटल राइट्स अंडर आसुची। तो को आर्टिकल अनटचेबिलिटी को एबोलिश करे आर्टिकल 18 17 16 19। तो मन रखिबे अनटचेबिलिटी रिलेटेड विथ आर्टिकल 17 और ए सब मध्य मन रखंती एबोलिशन ऑफ टाइटल जदि आसे गोटे वर्ड मन रखिबे टाइटल हला। टाइटल जदि आसे सेटा हो आर्टिकल 18 9 16 रे कोन अछि इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हला। ए गोटे वर्ड मन रखिबे एम्प्लॉयमेंट गोटे गोटे कीवर्ड भी मन रखिले जदि पहले इजी हो जइबो हला। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटा आर्टिकल 16 19 रे फ्रीडम माने 6 टा फ्रीडम विषय रे लिखा है जी आर्टिकल 19 रे हला। फ्रीडम वर्ड को मन रखिबे। तो गोटे गोटे कीवर्ड मध्य इंपोर्टेंट सेथिरु मध्य आपण माने आंसर गेस करि परिबे। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवा। नेक्स्ट अछि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट को किए
शपथ पाठ करांती हैला। तो एटा हवा आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम सुप्रीम कोर्ट रो जो चीफ जस्टिस थांती से कोन करांती प्रेसिडेंट को शपथ पाठ करांती जेते बेले से प्रेसिडेंट जेते बेले इलेक्ट होंती हैला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा द concept of public interest litigation बा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टा को कंट्री रो ओरिजिनेट होईची। तो यार आंसर डायरेक्ट मन रखंतु यूएसए। PIL बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टा यूएसए रो बोरो करा होईची। नेक्स्ट अछि हु कैन रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बारंबार एडा पचारु छै हला जेते बेले भी रिमूव किंबा अपॉइंट कथा पचारे सेते बेले प्रेसिडेंट ही करि देबे हला। प्रेसिडेंट ही हो तो कोन सुप्रीम कोर्ट रो जज मानन को के रिमूव करि पारिबे तो एटा करि पारिबे हमरो प्रेसिडेंट हला। तो हम जानिले चीफ जस्टिस को मिनिमम एज मन रखंतु चीफ जस्टिस को मिनिमम एज मिनिमम नो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट रो मैक्सिमम एज होची 65 और हाई कोर्ट रो जदी जज मानन को कथा कहिबा सेटा होची 62 माने सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर होई गला जने को रिटायर नबा को पड़ी थाए जज छबा माने जज मानन को और हाई कोर्ट 62 ईयर होई गला रिटायर नबा को पड़ी थाए। पार्लियामेंट हम जाडी छै कहा कहा को ने कि पार्लियामेंट माने गठित लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो कोन प्राइम मिनिस्टर जे की कोन जे की गुटे कण एमपी और लोकसभा रो मेजॉरिटी जो मान पार्टी हासिल करे तार लीडर हंती प्राइम मिनिस्टर। तो एटा जानि छु एबे कोन रिमूव किए करंती जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट हे जो आंसर। तो फर्स्ट छी व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स हला। तो फंडामेंटल राइट्स माने जानि थिबे हमर को मौलिक अधिकार जो सेटा को माने को पार्ट रे अछि पचारि छै हला। फर्स्ट जानि रखंतु कि आर्टिकल ना आर्टिकल केते रु केते 12 रु 35 मध्य रे अछि हला। 12 रु 35 बा हमें कहिताउ 12 रु 35 मध्य रे हमरो फंडामेंटल राइट्स लेखा होई छै हला कोठी हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो आर्टिकल तो जानिला 12 रु 35 तो को पार्ट रे पचारि छी ऑप्शन रे अछि पार्ट ट्रिपल आई पार्ट भी पार्ट आई भी पार्ट डबल आई। तो कोटा हो आंसर ना जते बेले फंडामेंटल राइट्स रो कथा कहू छी राइट्स हला मन रखबे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज न तो फंडामेंटल राइट्स रो जदी कहे ताहले सेटा हो पार्ट ट्रिपल आई और पार्ट आई भी रे हमरो अछि डीपीएसपी कोन डीपीएसपी हला और फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये अछि पार्ट आई भी ए रे और ताहले पार्ट 2 रे कोन अछि सिटीजनशिप अछि हला एटा मन रखिबे सिटीजनशिप को पार्ट रे अछि हमरो पार्ट 2 रे। तो पार्ट 1 रे कोन अछि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी माने यूनियन और टेरिटरी बाबद रे यूनियन सॉरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाबद रे अछि सिटीजनशिप हला। तो एबे कोन फंडामेंटल राइट्स हमरो पार्ट ट्रिपल आई आर्टिकल 12 रु 35 मध्य रे मौलिक अधिकार अछि। नेक्स्ट अछि एबे तो डीपीएसपी डायरेक्ट तार फुल फॉर्म कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो है बोरोड फ्रॉम अछि हला बोरोड माने कोन कोठारु ओणा होई छी हम कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऑप्शन रे अछि आयरलैंड कनाडा यूएसए यूके। फर्स्ट हम जानि रखिबा को जिनिस माने को इंपोर्टेंट जिनिस को कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करा होई यूके रो हमरा आसी छी यूके माने कोन यूनाइटेड किंगडम हला सेठारु रूल ऑफ लॉ आसी छी मन रखिबे रूल ऑफ लॉ किंबा सिटीजनशिप मध्ये हे गला कोठारु आसी छी यूके सिटीजनशिप मन रखिबे हला सेटा मध्ये यूके यूएसए ठारु बहुत किछि आसी छी
आउ से मधुर इम्पोर्टेंट हो प्रिएम्बुल प्रिएम्बुल आमर कोठार आसी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा है माने आनी की मॉडिफाई करा है आ कोन यूएसए रु आ कोन आसी ना हमर फंडामेंटल राइट्स मध्ये आसी हला कनाडा रु सेपरेशन ऑफ पावर हला पावर जो माने सेंटर और स्टेट मध्य रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन टा मध्य कनाडा रु आसी और आइलैंड रु आपन आसी जो बहुत इंपोर्टेंट डीपीएसपी तो आंसर कोडा हबो आइलैंड किंबा ऑप्शन रे दे देथिबो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन देथिले मध्य सेटा आइलैंड बोली की मानिबे हला नेक्स्ट अछि which article of the Indian Constitution abolishes untouchability abolishes माने हटाइबा पई जोटा लेखा होई छी तो untouchability वर्ड एटा मन रखबे ए वर्ड आसीला माने आर्टिकल 17 आडगु चली जिवे तो आर्टिकल 17 रे हमर अछि untouchability बा अस्पृश्यता जो कहिता ओडिया रे तो आर्टिकल 19 रे अछि फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड ना यह अछि फ्रीडम ऑफ 6 फ्रीडम दिया जाइछि माने फ्रीडम केतुटी दिया जाइछि 6 टी फ्रीडम दिया जाइछि आर्टिकल 19 फॉलो रे तो से 6 टा मध्ये मन रखिबे फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन सेटा हला तो एमिति करी 6 टी अछि तो मन रखिबे फ्रीडम टू मूव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रीडम टू कोन माने किछि भी ऑक्युपेशन करि परिबे हला तो सेमिति 6 टी अछि मन रखिबे आर्टिकल 20 रे कोन लिखा हिछि कन्विक्शन एंड अरेस्ट बाबद कन्विक्शन एंड अरेस्ट बाबद रे लिखा हिछि एटा मन रखिबे आर्टिकल 20 तो आर्टिकल 18 रे कोन लिखा हिछि एबोलिशन ऑफ टाइटल को आर्टिकल रे लिखा है आर्टिकल 18 एटा भी मन रखिबे फिलहाल हमको कोन अनटचेबिलिटी पचारि देला तो तार आंसर हो आर्टिकल 17 नेक्स्ट जीवा हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्किटेक्ट किए आर्किटेक्ट माने जे निर्माण करंती बा निर्माता तो आंसर गोटा हबो सरदार पटेल अंबेडकर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू तो मन रखिबे बी आर अंबेडकर हे जबो आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहा जाय आ आर्किटेक्ट मध्ये कहा जाय आ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर हेबा पई केते 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लागि थिला यह पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्ये कोन होइतिला फॉर्म होइतिला सेटा हमें जानि छु तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज तो को आर्टिकल रे ऑफिशियल लैंग्वेज गुडी को विषय रे लिखा होई छि 8 सॉरी आर्टिकल पचारने शेड्यूल को शेड्यूल पचारि छि 8 शेड्यूल 9 शेड्यूल 10th 5th तो शेड्यूल जदि पचारे ताहले करिवे आपण माने 8 शेड्यूल रे आपण को लिखा होई छि ऑफिशियल लैंग्वेज गुडी को बाबद रे आ केतेटी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा होई छि मन रखिबे 22 टी हला से मध्यरो हमरो ओडिया लैंग्वेज मध्य गोटे हला एबे अछि क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन declares India as a secular state हला secular state माने कोन धर्म निरपेक्ष तो को आर्टिकल अछि जेउटा कि इंडिया को सेक्युलर स्टेट भाव रे डिक्लेयर करिथाय तो आर्टिकल 25 अछि 51 अछि 14 अछि 30 अछि तो जेहेतु सेक्युलर स्टेट पचारे छी ताहले ऑप्शन ए हे जबा आपन मानको करेक्ट आंसर माने आर्टिकल 25 अब एटा को अंडर आसु जी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहा की फंडामेंटल
राइट तो ताहा अंडर रे आसुची और यह इंडिया को गोटे सेक्युलर स्टेट भाव रे डिक्लेयर करी थाए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बा तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन जो हुए को मेथड रे होता है इंडिया रे हला सिंपल मेजॉरिटी डायरेक्ट इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लोट सिस्टम कोटा आंसर ना मन रखिबे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है। तो एथिरे माने की भोट दियंती सेटा भी मन रखिबे सब आमर कौन आम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो कौन हो गले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो सब स्टेट रो मेंबर बा आम तांको एमएलए कहिताऊ एमपी तापर राज्यसभा रो सब मेंबर तो समस्त मिसी की प्रेसिडेंट को इलेक्ट करंती तो ता से प्रोसेस को कहा जाए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। डायरेक्ट इलेक्शन हम कोठी हुए माने विलेज स्तर रे जो पंचायत इलेक्शन सेटा डायरेक्ट इलेक्शन तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन टा गोटे डायरेक्ट इलेक्शन नुहे हम इंडिया रे हला। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एटा मु कहि जे आगर हला को आर्टिकल सॉरी को पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बाबद रे कहि थाए। पार्ट 13 ही तो जानिला फंडामेंटल राइट्स हला फंडामेंटल राइट एटा तो होनी एफआर लिखि दबा फंडामेंटल राइट होचे पार्ट 13I को पार्ट रे को माने कोन लेखा होचे सेटा मन रखिबे पार्ट आई भीतर डीपीएसपी पार्ट आई भी होचे हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो पार्ट 1 हे जबा अपन मान को आंसर पार्ट 1 रे कोन लेखा होची ना पार्ट 1 रे लेखा होची यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 2 रे ताहले कोन लेखा होची पार्ट 2 रे सिटीजनशिप सब पार्ट मन रखिबा को पड़िबा अपन मान को कोटा भी माने एग्जाम रे आसी जाउची सिटीजनशिप बाबद रे लेखा होची पार्ट 2 रे तो पार्ट 1 रे अछि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आपण माने जदि चैनल रे नवा अछंती ताहले वीडियो को गोटे लाइक करबा को मात्र गोटे सेकंड लागिवो तो वीडियो को गोटे लाइक कर देबे समस्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ तो एटा तो जानि थिबे इक्वालिटी बिफोर लॉ को आर्टिकल रे लिखा होई जे आर्टिकल 16 रे लिखा होई जे कोन आर्टिकल 16 रे लिखा होई जे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वर्ड माने कीवर्ड मानन को मन रखिबे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने पब्लिक जॉब रे जो दिया जाय सेथिरे इक्वालिटी मेंटेन करा जीवा उचित सेटा लिखा होई छी हम आर्टिकल 16 रे। है राइटिंग टे एडजस्ट कर देबे हला और आर्टिकल 14 रे कोन अछि आपण मन को इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आंसर हे जबो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ यदि पचारे आर्टिकल 14 करिवे 13 रे तो किछि समिति नाही तो 15 इंपोर्टेंट 15 कोन फ्रीडम ऑफ माने इक्वालिटी इन मैटर ऑफ माने सब किछि कास्ट रिलीजन सेक्स जेंडर सब माने नै कि परिशेष रे सबे इक्वल तार माने हला तो आर्टिकल 15 मन रखिबे तो आंसर इक्वालिटी बिफोर लॉ यदि पचारे आर्टिकल 14 मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट हला। The preamble of the Indian Constitution was inspired by which country? Preamble माने preamble टा को कंट्री रो बोरो करा होइछि तो एटा डिस्कस करि छ हम माने preamble मन रखिबे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो आसीछि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रांस रो मन रखिबे रिपब्लिक वार्ड हमरो जो रिपब्लिक वार्ड टा अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेटा कोठार आसी जे फ्रांस एटा भी आसी था हैला। ऑस्ट्रेलिया रो आसी जे कॉन्करेंट लिस्ट माने कोन जो स्टेट आउ यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ गुटे कोन रहला
कनकरेंट लिस्ट माने सेटा बोथ स्टेट रे भी आसी थाए आउ कोन सेंटर रे भी आसी थाए कनकरेंट लिस्ट रो आईडिया टा आसी ऑस्ट्रेलिया रो कनाडा रो कोन आसी सेपरेशन ऑफ पावर आउ किंबा कहि परिबा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर माने सेंटर और स्टेट मध्य रे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो प्रिएम्बल टा मन रखिले यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी आउ कोन आसी यूएसए रो फंडामेंटल राइट्स हो गला इलेक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आसी आइलैंड रो किंबा कोनबा इम्पीचमेंट एटा आसी था एग्जाम रे प्रेसिडेंट को केमिति माने इम्पीचमेंट करा जाय सेटा आसी यूएसए रो हम जुडिशियल सिस्टम आसी यूएसए रो बहुत इंपोर्टेंट हला जुडिशियल सिस्टम यूएसए हला तो एगुडी को बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट जीवा राइट टू एजुकेशन अछि हला तो को अमेंडमेंट फॉलो रे राइट टू एजुकेशन आसीला हम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 44 42 73 आ गोटे रहला 86 तो मन रखिबे राइट टू एजुकेशन जते बेले कहि देबो सेते बेले आपण सीधा 86 अमेंडमेंट आड़ को चली जिवे आ मसीहा जदी पछारे 2002 मसीहा को पले चली जिवे हला 2002 मसीहा रे 86 अमेंडमेंट होइतिला जाहि राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड करिथिला हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रे 73 पंचायती राज छला विलेज लेवल रे पंचायती राज एटा पंचायती राज हला आर्टिकल कोडा आर्टिकल 73 42 रे बहुत किछि होइतला हला 42 अमेंडमेंट को सेति में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाय मन रखिबे 42 हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होइतला एजुकेशन हमरो ऐड होइतला कनकरेंट लिस्ट रे तो बहुत किछि तो 44 अमेंडमेंट कोन होइतला हमरो हेला जो राइट टू प्रॉपर्टी सेटा रिमूव होइतला 1970 मसिया मध्ये मन रखि देबे 1978 रे 42 अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केबे होइतला माने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का को कहा जाय 42 अमेंडमेंट को एटा होइतला 1972 रे मन रखिबे इम्पीचमेंट माने फास्ट जानंतु इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कोन माने प्रेसिडेंट को केमिति रिमूव करा जाय तो एटा आसीची ए आईडिया टा कोठारो आसीची यूएसए रो हला बा अमेरिका रो आसीची तो को आर्टिकल पचारि छी 61 56 76 75 तो मन रखिबे जते बेले इम्पीचमेंट कथा जायली आसे प्रेसिडेंट रो जते बेले आर्टिकल 61 होई जाय हला कोठारो आसीची इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यूएसए हला नेक्स्ट जीवा फाइनेंस कमीशन माने इंडिया रो जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा जेबा कोन को जे कॉन्स्टिट्यूट करा जे तो को आर्टिकल फॉलो रे फर्स्ट जानि रखिबा आर्टिकल 356 कोन ता स्टेट इमरजेंसी हला एटा तो न तो कोटा हबन सर मन रखिबे फाइनेंस कमीशन जते बेले पचारे सेते बेले करिवे आर्टिकल 280 माने 280 आर्टिकल फॉलो रे फाइनेंस कमीशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड or constitute in India under the article 280 ଆଉ କିଏ फाइनेंस कमीशन को किए कॉन्स्टिट्यूट करंती माने कहार कोन अछि अथॉरिटी अछि प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट हला एटा मन रखिबे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करंती आर्टिकल वो आर्टिकल 280 तो समस्त गोटे क्वेश्चन अच्छी आर्टिकल 262 कौन कहे है माने आर्टिकल 262 रे कौन लिखा होइछि माने से कीवर्ड टा लिखिदेवे को रिलेटेड खाली गोटे वर्ड रे मध्य आंसर दे पारिबे आर्टिकल 262 हला माने कौन लिखा होइछि माने स्पेशल कौन आर्टिकल 262 रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट हला आर्टिकल 262 कमेंट रे समस्त लिखिबे
माने कहार पावर अछि टू डिसोल्व द लोकसभा माने लोकसभा को डिसोल्व करबा पई कहार अथॉरिटी अछि चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर तो कोन हबो आंसर यार आंसर हे जिवो प्रेसिडेंट हला प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व द लोकसभा नेक्स्ट अछि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने अमेंडमेंट एटा को आर्टिकल रे लिखा ही छी अमेंडमेंट जो हैला को आर्टिकल पजारी छी अमेंडमेंट हम जानि छु माने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत थरो अमेंड करा जाई छी तो माने कोन मॉडिफाई किबा चेंज तो को आर्टिकल एटा लिखा होई छी तो आर्टिकल 368 मन रखिबे आर्टिकल 368 रे अमेंडमेंट विषय रे लिखा होई छी सेक्युलर वाज एडेड माने तीनोटी वर्ड माने हम प्रिएम्बल रे अछि मन रखिबे सेक्युलर सोशल आ गुटे होला इंटीग्रिटी हैला सेक्युलर सोशल इंटीग्रिटी तो ए तीनोटी वर्ड को अमेंडमेंट फॉलो रे इंडिया रे एड होई छी तो मन रखिबे 52 न हो 24 भी न हो और 44 भी न हो तो आंसर है आपण मानकर 42 अमेंडमेंट फॉलो रे सेक्युलर सोशल और इंटीग्रिटी ए तीनोटी वर्ड 42 अमेंडमेंट फॉलो रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड होई छी नेक्स्ट जिबा जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा है तो एटा हमें आगर भी कहि छु हैला जुडिशियल रिव्यू जो हैला जुडिशियल रिव्यू सिस्टम तो आपण माने एमिति भी मन रखि पारिबे कि एंटायर जुडिशियल सिस्टम जो हे गला हमरो सेटा हमरो जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन तो से यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन थारु सब किछि ओना होई छि जुडिशियल रिलेटेड आइलैंड रो कोन आसी छि डीपीएसपी आसी छि एटा तो बार बार हमें देखि छि हैला बहुत थोड़ा देखि छि डीपीएसपी और डीपीएसपी को आर्टिकल 36 रु 51 रे हमरो डीपीएसपी लिखा होई छि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 रु 51 कानाडा रु आसी छि सेपरेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूके रु रूल ऑफ लॉ आसी छि सिटीजनशिप आसी छि हला और ये यूके मन रखिबे गोटे मात्र डेमोक्रेटिक कंट्री जो थरे की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट आउ थरे कहि रखु जे यूके बा यूनाइटेड किंगडम गोटे मात्र डेमोक्रेटिक कंट्री जो थारे की कोन अछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे मध्य रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नाही which body resolve dispute regarding the election of president and vice president माने इलेक्शन डिस्प्यूट माने कोन जदी किछि विवाद हो जाए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन को नै की ताले को इंस्टीट्यूट बा को बॉडी ताको सॉल्व करि थाए तो मन रखिबे यार आंसर हिबो सुप्रीम कोर्ट हला सुप्रीम कोर्ट रे तारो सुनानी होई थाए तारो हियरिंग होई थाए हला यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मध्य इलेक्शन मध्य किछि विवाद होई है हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुटे थांती टोटल तीनोटी थांती मन रखिबे इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर माने इलेक्शन कमिश्नर तीनोटी थांती सेमान को मध्यरु जणे थांती चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ताकू किए अपॉइंट करंती प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मन रखिबे प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू elect not elect appoint to appoint the chief election commissioner of India so who has the authority president हला फाइनेंस कमिशन मध्य ये कोन करंती कॉन्स्टिट्यूट करंती आ हम डिफेंस रो एटा उडा एग्जाम रासी दे माने डिफेंस बा मिलिटरी को कमांड दियंती माने कोन इमरजेंसी सिचुएशन आसिला हेड ऑफ डिफेंस कोही तो हमें हला
काहाकू प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट जिबा हुई आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा को आर्टिकल रे लिखा होई जे आर्टिकल 20 19 32 21 मन रखिबे ऑप्शन डी ला ऑप्शन डी रे जो हमर हे गला लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा होई छी। एटा ओटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीड केतोटी अछि 5टी अछि हला 5टी रीड अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल रे आर्टिकल 32 रे हला आर्टिकल 32 रे लिखा होई छी 5टी रीड तथि 5टी मध्यरु काहाकू कहा जाय ग्रेट रीड ऑफ लिबर्टी। ग्रेट रीड ऑफ लिबर्टी काहाकू कहा जाय मन रखिबे हेबस कॉर्पस को काहे की ग्रेट रीड ऑफ लिबर्टी कहा जाय काहे कि ना यह माने इंडिविजुअल को तार फ्रीडम प्रोवाइड करि थाए अरेस्ट समय रे से माने बिना कोनोसी माने रीजन रे अरेस्ट होई परिबो नाही सी प्रकार लिबर्टी प्रोवाइड करि थाए सेति पई हेबस कॉर्पस को कहा जाय ग्रेट रीड ऑफ लिबर्टी। आजिरो लास्ट क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी एटा को नेशनल करि देबे हला क्वेश्चन टिके बोले छी नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल रे हमर लिखा होई छी तो यार आंसर कोटा हो आर्टिकल 360 317 356 352 तो यार आंसर है जीवो 352 352 रे लिखा होई छी हमर नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन विषय रे तो 356 होई छी स्टेट इमरजेंसी 356 कोन स्टेट इमरजेंसी और इमरजेंसी सिचुएशन रे कोन चली थाए प्रेसिडेंट रूल चली थाए हला एटा लिखा होई छी आर्टिकल 356 360 रे कोन लिखा होई छी फाइनेंशियल कोन हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे लिखा होई छी आर्टिकल 360 रे और आर्टिकल 370 तो जानी छंदी 370 जोटा कि रिमूव होई छी हला तो आर्टिकल 352 हो छी नेशनल इमरजेंसी 356 हो छी स्टेट इमरजेंसी और 360 हो छी फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनोटी मने रखिबे। टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट होइतिला तारो टेम्पोररी चेयरमैन की थिले सेटा पचरा होई छी हला तो ऑप्शन रे अछि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बी.आर. अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ अछि जवाहरलाल नेहरू तो आंसर कोडा हबो देखंतु माने क्वेश्चन पचरे छी टेम्पोररी चेयरमैन हला टेम्पोररी माने हे जिबो आपन मानकर ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टेम्पोररी चेयरमैन और यदि परमानेंट पचरी थांता ताहले मन रखिबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होचंती परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यदि परमानेंट पचारे ताहले करिवे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यदि टेम्पोररी पचारे ताहले सच्चिदानंद सिन्हा हला तो बी.आर. अंबेडकर को कथा यदि कहवा ये थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन हला ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले बी.आर. अंबेडकर और तांको कोन कहा जाय आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू यदि कहवा दहला ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन ओआर खाली लिखि दउ छला ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को सजेस्ट करनो माने कोन हम कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोवाइड करथिले तो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन सह जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड राजेंद्र प्रसाद होचंती फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंट चेयरमैन हला परमानेंट होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और टेम्पोररी पचारिले सच्चिदानंद सिन्हा आउ गण बी.आर. अंबेडकर होचंती ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हला एडा सब जानिले नेक्स्ट अछि अरे रो टिके हो नेक्स्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आपण मनको द टोटल नंबर ऑफ
शेड्यूल माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर केतोटी शेड्यूल अछि शेड्यूल नंबर माने शेड्यूल रो संख्या पचारि छी ऑप्शन रे अछि 11 10 8 12 तो शेड्यूल जदि पचारे ताहले मन रखिबे देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यदि पार्ट पचारे केतोटी पार्ट यदि केतोटी पार्ट पचारे ताहले करिवे 22 देयर आर 22 पार्ट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल तो माने किछि फिक्स है कि नहीं किंतु जते बेले ओरिजिन होइथिला माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले फर्स्ट एडॉप्ट होइथिला सेति कि बेले 395 टी आर्टिकल थिला तो ए तीनोटी जिनिस मन रखिबे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड हला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच आर्ट देखंतु नेक्स्ट अछि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोन कहि छी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विषय रे हमर को आर्टिकल रे लिखा होई छी तो ऑप्शन रे अछि आर्टिकल 136 132 आर्टिकल 124 और 143 तो कोडा हो आंसर हां जते बेले सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट कथा कहे सेते बेले मन रखिबे आपण मान को आर्टिकल 124 ऑप्शन नंबर सी जोडा आर्टिकल 124 रे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विषय रे लिखा होई छी हला नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा हला ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहला आपण मान को पई द इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल परंतु आर्टिकल 356 रे हला तो को इमरजेंसी विषय रे लिखा होई छी कोहाई छी हला पचरा जाई छी तो मन रखिबे जते बेले नेशनल इमरजेंसी हमर को आर्टिकल ना आर्टिकल 300 एटा 300 हला आर्टिकल 352 तीनोटी अछि ना इमरजेंसी 352 356 और 360 हला जुडिशियल इमरजेंसी किछि समिति नाही स्टेट इमरजेंसी होछि 356 रे कोन हमर स्टेट इमरजेंसी अछि और फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा यदि कहे तले आर्टिकल 360 कर देबे हला 360 तो कोडा पचारि छी आर्टिकल 356 पचारि छी तो 356 रे स्टेट इमरजेंसी माने कोन ना प्रेसिडेंशियल रूल चली थाए गोटे स्टेट रे इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन और नेशनल इमरजेंसी जे नेशन रे किछि माने इमरजेंसी सिचुएशन आसिले कोन प्रेसिडेंट जे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करंती सेटा भी मन रखिबे के डिक्लेयर करंती प्रेसिडेंट तो एटा थिला नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड केतोटे आर्टिकल तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हला ओके तो नेक्स्ट अछि द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट माने को आर्टिकल हिसाब रे नेशनल कमीशन कोन एस्टैब्लिश होई छी फॉर द शेड्यूल कास्ट तो ऑप्शन अछि 342 338 334 और 340 तो कोटा आंसर हबो ना आपण मान को आंसर बी ही जीवो करेक्ट आर्टिकल 338 हिसाब रे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश होई छी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हला नेक्स्ट अछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड देखंतु सबले पचारे एडॉप्ट केबे हला आ उडे पचारे केम इनटू फोर्स दीडी कथा पचारे केम इनटू फोर्स भी पचारे हला एडॉप्ट केबे होइतिला और केम इनटू फोर्स माने कोन केम इनटू फोर्स माने कार्यकारी हला केम इनटू फोर्स माने कोन कार्यकारी और एडॉप्ट माने केबे ता माने गृहीत होइतिला तो पचारि छी एडॉप्ट तो एडॉप्ट जदि पचारे ताहले मन रखिबे
1949 नवेम्बर 26 जहाँ को आम कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से पालन करू नवेम्बर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे केवे 1949 रे 1950 जनवरी 26 रे एटा कोन हितिला केम इनटू फोर्स हितिला माने कोन हितिला कार्यकारी होइतिला और ए जनवरी 26 को आम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हिसाब से सेलिब्रेट करू हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हला क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज माने माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट को विषय रे हला प्रोटेक्शन तांको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिवा विषय रे को आर्टिकल रे लिखा हिची ऑप्शन अछि आर्टिकल 30 32 29 28 तो मन रखिबे यार आंसर हे जबो आर्टिकल 29 आ यदि राइट्स पचारे एटा आसुची फंडामेंटल राइट्स अंडर रे हला फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुची और फंडामेंटल राइट्स हमर कोठी अछि आर्टिकल 12 रु 35 अंडर रे अछि। तो एटा थिला आपण मानको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रहंतु टिके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हला हो नेक्स्ट अछि who among the following has the right to address both माने कहार राइट अछि कोन अछि राइट अछि टिके रहंतु से क्वेश्चन रा अब चली वाला ओके तो कोन अछि who among addressed both माने कहार राइट अछि कोन करबा को टू एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने हमर जो पार्लियामेंट दुईटे हाउस अछि लोकसभा राज्यसभा तो कहार राइट अछि जे कि दुईटी जाको हाउस को एड्रेस करि परिबे हला। ऑप्शन अछि चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो यदि बेला बोथ टू एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पचारे सेते बेले प्रेसिडेंट ही जबो आंसर माने प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ हाउस मींस राज्यसभा एंड लोकसभा हला मन रखिले ओके। तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हला नेक्स्ट अछि आपण मानक कोन हो जेडा हो नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू इंफॉर्मेशन माने राइट टू इंफॉर्मेशन को माने कोन अछि केबे इनैक्टेड होइथिला को ईयर रे ईयर पचारि छी तो राइट टू इंफॉर्मेशन यदि पचारे मन रखिबे एटा राइट टू इंफॉर्मेशन यदि पचारे मन रखिबे एटा 2005 रे होइथिला राइट टू इंफॉर्मेशन यदि बेला पचारे मन रखिबे 2005 हे जबो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा नेक्स्ट अछि द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी माने फाइनेंस कमीशन केते वर्ष रे थरे अपॉइंट करा जाय फर्स्ट किए अपॉइंट करंती मन रखिबे प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट फाइनेंस कमीशन अंडर व्हिच आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280 माने आर्टिकल 280 हिसाब रे प्रेसिडेंट कैन फॉर कोन कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन केते वर्ष रे थरे 6 5 3 4 ना मन रखिबे यार आंसर आइबो 5 वर्ष रे थरे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कोन करंती अपॉइंट करंती। नेक्स्ट जीवा who has the power to appoint comptroller and auditor general of India माने ए comptroller and auditor general को किए कोन करंती अपॉइंट करंती इंडिया रे
प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो एटा आपण माने जानिथिबे सीएजी भी हमें कहू तांको, तो तांको अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मन रखिले। आ उटे रहंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो तांको माने से होचंती गोटे गवर्नमेंट ऑफिसर आ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाए फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ने फर्स्ट लॉ माने से होचंती सो माने ही कैन माने बोथ हाउस रे से पार्टिसिपेट करि पारंती और तांकर राइट टू वोट रो क्षमता न थाय, माने से वोट देंती नाही किए से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाए तांको। नेक्स्ट जीवा ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। पंचायती राज को अमेंडमेंट द्वारा कोन करा गला कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा गला हला। तो 42 74 73 44। तो फर्स्ट मन रखंतु 42 को कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहे कहा जाए बहुत किछि माने चेंजेस बा अमेंड होइथिला ए 42 अमेंडमेंट द्वारा हमर जो कोन सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी वर्ड ऐड होइथिला, प्रीएम्बल आसीथिला हला को 42 अमेंडमेंट आ मध्ये बहुत गुडे चेंज होइथिला। एजुकेशन वर्ड जो हम कॉन्करेंट लिस्ट रे सेटा भी 42 अमेंडमेंट आसीथिला। 74 रे कोन म्युनिसिपल माने सहरांचल जो स्वायत्त शासन अछि म्युनिसिपल लेवल रे, तो तारो कोन होइतिला ताकू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा होइतिला 74 अमेंडमेंट द्वारा 74। आ 73 जोटा आपण मानको पंचायती राज दिवस न पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज जदि पचारे ताहले करिवे किबा पंचायत जदि पचारे विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनलाइज केबे करा गला को अमेंडमेंट द्वारा 73। 44 आमे जानि छु राइट टू प्रॉपर्टी जो अछि ताको रिमूव करा गला केबे 1978 रे 1978 हला। राइट टू प्रॉपर्टी दा एग्जाम रे आसी थे। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट बोलरे रिमूव करा गला। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी मने रखी थिबे। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहा को कहा जाए हमर अमेंडमेंट नंबर 42 को या को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। तो फिलहाल हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विषय रे पचारि छी। तो 73 अमेंडमेंट को ईयर 1992 ईयर भी मन रखि दंतु 1992 रे हला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आडबो जीवा हला। ओके नेक्स्ट अछि हमर जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल को आर्टिकल अछि प्रथम कहंतु आर्टिकल 12 रु 35 रे अछि 12 रु 35 रे अछि। तो ए कोन कहि छी को कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करा है छी। ऑप्शन रे अछि यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस, यूके। तो मन रखिबे जदि बेले फंडामेंटल राइट्स पचारे ताहले सेटा हेबो यूएसए रो फंडामेंटल राइट्स को बोरो करा है छी। आयरलैंड रो कोन आसी छी डीपीएसपी आसी छी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आसी छी। फ्रांस रो कोन रिपब्लिक वर्ड जो हम कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि रिपब्लिक सिस्टम बा रिपब्लिक वर्ड कहि परिबा रिपब्लिक एटा आसी छी हमरो फ्रांस रो। किबा फ्राटर्निटी बा भातृभाव आम प्रिएम्बल रे सेटा मते फ्रांस रो आसी छी। और यूके रो कोन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठे आसी छी हम यूके। और सिंगल सिटीजनशिप मध्य यूके रो आसी छी। तो एगुडा को मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आगु आपण मैंने जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करदेवे। तो नेक्स्ट अच्छे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ included in our constitution through which amendment माने को amendment द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को आम कॉन्स्टिट्यूशन रे इंक्लूड करा होई छी। तो ऑप्शन अछि 52 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 44 61। फर्स्ट हम देखिबा 61 अमेंडमेंट रे कोन होइतिला ना वोट जो वोटिंग एज 21 रु कोन होइतिला 21 रु 18 एबे माने हम जानि छु 18 वर्ष हेले जणे वोट देई पारिबो किंतु ए 60 आगर कोन थिला 21 वर्ष हेले जणे वोट देई देवार क्षमता पाउथिला। तो 61 अमेंडमेंट बोलरे ताकू रिड्यूस करा होई कि 18 एज करा वाला। 44 अमेंडमेंट हम एबे टिके पूर्व देखला हम राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव करा होई छी 1978 रे। 42 अमेंडमेंट जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए बहुत किछि चेंजेस आसीतिला आ एटा ईयर टा मन रखि देबे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बा हमरो 42 अमेंडमेंट 1976 रे 1976 रे होइतिला 42 अमेंडमेंट। आ आंसर तहले कोन हबो एंटी डिफेक्शन लॉ हेजिबो ऑप्शन ए 52 अमेंडमेंट रे आ ईयर मध्य पचारि बारे 1985 रे होइतिला 52 अमेंडमेंट जहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ सह रिलेटेड हला मन रखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा हला नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके हु कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट माने कोन गवर्नर हम जानि छु गवर्नर माने कोन हम कहू ताको राज्यपाल कहू हम ओडिसा रे कोन कहू राज्यपाल। तो आपण मानक पई गोटे क्वेश्चन अछि एबे हमर राज्यपाल की अछंती हमर माने हम ओडिसा रो राज्यपाल प्रेजेंट राज्यपाल की अछंती ताकू यदि आपण माने जानि छंती कमेंट रे निहाती भाबे कहिबे हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिसा। दिस इज a question for you all। okay so now the question is who can remove the governor of a state गोटे राज्य रो गवर्नर को किए रिमूव करि पारंती प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर। तो निहाती भाबे प्रेसिडेंट हिजो आंसर। गोटे ट्रिक गोटे कहूची आपण मानकू जेते बेले भी अपॉइंटमेंट किंबा रिमूव करि परिबे किए अपॉइंट करि परिबे समिति पचारे बेसिकली सेटा प्रेसिडेंट होइता है हला प्रेसिडेंट कैन रिमूव एंड अपॉइंट बहुत माने से माने अपॉइंट और रिमूव करिवार क्षमता प्रेसिडेंट पाखरे बेसिकली थाए मोस्ट प्रोबेबली। ओके नेक्स्ट जीवा एटा जानि ले हला नेक्स्ट जीवा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स माने कोन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्शन बारे हम देखला प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज देखितिला आर्टिकल 29 रे। तो एबे पचारि जी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो मन रखिबे बेसिकली माने जो आर्टिकल यहा सो मैच हो सेटा होची आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 डायरेक्टली ए कथा माने लेखा होई जे ले ऑप्शन रे आर्टिकल 46 नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल ए माने सॉरी ऑप्शन ए माने आर्टिकल 335 मोस्ट प्रोबेबली हेई पारिबो आंसर। और जदी ऑप्शन 46 अछि तो 46 होची तार एग्जैक्ट आंसर हला आर्टिकल 46 हला मन रखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवाबे नेक्स्ट अछि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज बा माने जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो अछि तो तारो कोन
माने इंडिया रे ताकू किए एक्सरसाइज करंती जुडिशियल रिव्यू को प्राइम मिनिस्टर तो होबनी प्रेसिडेंट मध्य होबनी पार्लियामेंट मध्य होबनी तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया इन इंडिया मन रखिए नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी which schedule of the constitution contains provision for the administration of tribal areas in the north east माने नॉर्थ ईस्ट रो जो ट्राइबल एरिया अच्छे है माने को शेड्यूल से विषय रे प्रोविजन क्रिएट करिछि माने किछि गुडे व्यवस्था तांको विषय रे कोन करिछि प्रोवाइड करिछि तो एहार आंसर आपण माने कमेंट रे लिखिबे एहार आंसर हला ए क्वेश्चन ता माने आपण मानको पई एहार आंसर कोटा हबो 10th शेड्यूल 5th शेड्यूल 7th शेड्यूल ना 6th तो एहार आंसर कमेंट रे लिखंतु माने आपण मानको पई दुईटी क्वेश्चन हे गला गोटी ओडिसा रो राज्यपाल के लिखिबे राज्यपाल वा गवर्नर आ गोटी क्वेश्चन एटा हला तो दुईटी रो आंसर आपण माने कमेंट रे लिखिबे तो वीडियो टी केमिति लागला भी जणाइबे आ चैनल रे नवा थिला चैनल को निहाती भाबे सब्सक्राइब करि देबे धन्यवाद।